The segregation of the chromosomes, the independent assortment of chromosomes, Sutton and Boveri, they argued that along with the segregation or the pairing of the chromosomes, it is very important that certain factors they carried, they also segregated. So it led to a setting up of a principle called chromosomal theory of inheritance. And followed by this, Thomas Hunt Morgan has also tried to do many experiments with the tiny fruit fly, that is Drosophila melanogaster, and he found that the results were very much similar with the Mendel. And as he chose Drosophila, why? Because they could be grown on simple synthetic medium, they complete their life cycle in 2 weeks, and single mating would produce a large number of progeny files. There is a clear differentiation of the sexes, that is male and female, ठीक है, and they also have a number of hereditary variations, and even with the low power microscope they can be seen. So he led to another concept, that is linkage and recombination. What do you mean by linkage? On the factor that the chromosomes they segregate, ठीक है, chromosomes they segregate. He led the concept has come that apart from the chromosome, certain factors or genes are also segregating, ठीक है. तो यहाँ लिखा है Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked. They were similar to dihybrid crosses carried by Mendel in peas, and he took yellow bodied white eyed females to brown bodied red eyed males and crossed their F1 progeny. He observed that two genes did not segregate independently, and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1, which was the ratio for independent assortment. But he found that the genes did not segregate, so it did not follow independent assortment rule. Now what he did, he knew that the genes are located on X chromosomes only, not Y chromosome. Why? Because Y chromosome was not discovered till that date. He found that the genes are located on the X chromosomes only, and saw quickly when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combination were much higher than the non-parental type. मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये क्रोमोज़ोम लेते हैं, यहाँ पर इस तरह का एक क्रोमोज़ोम लेते हैं, और तो यहाँ पर तो दो जीन है, सपोज़ दीज आर टू जीन्स, ये दोनों बहुत पास में अगर सिचुएटेड है, तो ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा ना, सपोज़ इसको हम ए बोलते हैं और इसको हम बी बोलते हैं, और दूसरा क्रोमोज़ोम अगर है, ये नॉन पेरेंटल क्रोमोज़ोम है, मतलब दिस इज़ पेरेंट, ये एक पेरेंट का है और ये दूसरे पेरेंट का है. जैसे हमको पता है कि हम क्रोमोज़ोम का 1/2 अपने मदर से लेते हैं, और मतलब फीमेल, और ये मेल का क्रोमोज़ोम है. सो यहाँ पर भी अगर सपोज़ डी और ई है, सपोज़ क्रोमोज़ोम का जो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, अगर दोनों में ये है, तो जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट जो बनेगा वो अगेन वो ए और बी होगा, ठीक है, या डी और ई होगा, डी ई, नॉट ए ई डी बी, इस तरह कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा अगर वो काफ़ी नज़दीक हैं. तो अगर यहाँ पर बहुत अच्छे से दूसरे में दिया है कि अगर वो काफ़ी डिस्टेंस में है, वो काफ़ी दूर है, ए और सपोज़ यहाँ पर है बी, सपोज़ इधर ही कर देते हैं बी, ठीक है, ए और बी, और दूसरा है ये हो गया डी और इधर हो गया ई. तो जो रिज़ल्टेंट होगा ना, जो रिज़ल्टेंट जो बनेगा क्रोमोसोम सेट, वो हो सकता है इधर ए और डी, ये हो सकता है. तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, एक नया सेट बनना इस रिकॉम्बिनेशन. और जो वही पेरेंट का ही अगर कॉम्बिनेशन लेता है, दैट इज़ लिंकेज, कि दे आर सो टाइटली लिंक्ड बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज लेसर, सो द genes are linked together, but the distance between the two genes are so
हाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सो Morgan attributed this due to physical association of the linkage of the two genes and coined the term linkage and described this physical association of the genes on the term chromosome, and term recombination is to describe generation of non-parental gene combination, ठीक है। Morgan and his group also found that even genes were grouped on the same chromosome, some genes are tightly linked, showed very little recombination, while others were loosely linked, show higher recombination. For example, he found the genes white and yellow very tightly linked. White and yellow were tightly linked and showed only 1.3% recombination. यहाँ पर white और येलो वाइट जो कॉम्बिनेशन है ना, ये येलो वाइट कॉम्बिनेशन ये बहुत टाइटली लिंक्ड है। देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना कम है, तो ये लोग कितना रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दिखा है, ओनली 1.3%। लेकिन वहीं पर वाइट मिनिएचर टाइप ऑफ विंग, वाइट है मिनिएचर है, विंग जो है वो काफ़ी दूर दूर है, तो ये रिकॉम्बिनेशन 37.2 बताया है। तो हम लोग इसको ज़रा समझ लेते हैं। व्हाट ही डिड कि दो तरह का हम लोग का क्रोमोसोमल, जैसे XX है तो फीमेल है, XY है। देखो Y क्रोमोसोम इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए ये क्रोमोसोम को ऐसा रखते थे, मगर दे वर नॉट श्योर कि ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये वाई है क्या है पता नहीं, सो इसको ऐसा रखे, उसके ऊपर कोई जीन नहीं रखे। तो ये Y+W+ इट इज़ अ वाइल्ड टाइप। वाई? बिकॉज ये नेचुरल था, ओरिजिनल था, और येलो और वाइट इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है। और इसका ऊपर का जो जीन है ना, दैट इज़ Y+W+। Y+W+ का मतलब क्या है? दिस इज़ डोमिनेंट वन, ठीक है। ये Y+ हो गया ब्राउन और W+ हो गया रेड आई, ब्राउन बॉडीड रेड आई। स्मॉल y स्मॉल w, ये y और w का मतलब है येलो बॉडीड वाइट आइड। तो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप इस तरह का आ गया, क्योंकि ये Y+W+ दोनों आया और ये फीमेल हुआ। और मेल कैसे आया? येलो बॉडीड एंड वाइट आइड आ गया, ठीक है, क्योंकि इनके पास इसी तरह का ये था, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ये इस तरह का बना। अब F1 में क्या आ रहा है? देखो F1 जनरेशन में पेरेंटल टाइप में क्या आ रहा है? अगर ये सब मेल है, बिकॉज ये एक क्रोमोसोम है Y, XY XY XY, तो ये किस तरह का बन रहा है? दिस इज़ वाइल्ड टाइप। रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, येलो वाइट आ गया जो ओरिजिनल पेरेंट के जैसा ही है, बट क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, X और Y हो गया है, बट जो उनका फिनोटाइप है वो वही है। Y+W+, ये अगेन वाइल्ड टाइप है, ये पेरेंट, दो अलग पेरेंट बन चुके हैं, ऑल्दो उनका क्रोमोसोम्स चेंज हो गया है। एक तो ये तो पूरे ही क्रोमोसोम्स चेंज हुए हैं, येलो वाइट आ गए हैं, लेकिन ये वाइल्ड टाइप के नहीं होकर के ये पेरेंटल जैसे ही है। बट यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन में क्या आ गया है? ये Y+ क्रोमोसोम, इसका Y+ मतलब पेरेंट का Y+ और दूसरे पेरेंट का W आ गया है। Y+W+ नहीं होकर के Y+ और W हो गया है। लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर ये फीमेल का हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन में Y+W YW, तो वो वाइट वाला आया है, ये येलो आया है। तो यहाँ पर क्या है? W+ और Y आया है, तो येलो बॉडीड आ गया है, ठीक है, ये वाइट आइड आ गया है। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज़ अ रिकॉम्बिनेंट टाइप, दिस इज़ रिकॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर देखो ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इस जगह में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इस जगह में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इस जगह में रिकॉम्बिनेशन हुआ है। बट यहाँ पर वाइल्ड टाइप और येलो वाइट, मतलब पेरेंटल टाइप में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, मगर रिकॉम्बिनेशन 1.3 यहाँ पर बहुत सारा हुआ है। अब दूसरा क्रॉस देखेंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। इट्स हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिकॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम लोग पेरेंटल तो आज तक सीखते हुए आ रहे हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, मगर रिकॉम्बिनेंट में क्योंकि ये दोनों के डिस्टेंस काफ़ी दूर दूर है, दे आर वेरी वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो ये रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज भी इनका
काफ़ी ज़्यादा आया है। बस यही बताना है, इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना है और ये फिनोटाइप भी देखना है। और ये क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो यहाँ पर दिया है द फ्रीक्वेंसी, उनका एक स्टूडेंट ने बताया कि स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट यूज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? बिटवीन जीन पेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। Recombination depends on the distance between the genes and map their position on the chromosome. Means recombination depends on the distance between the genes, and on this basis human genome sequencing project was discovered. कि human genome sequence इसके बाद डिस्कवर हुआ है आफ्टर द ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज। लिंकेज मतलब दोनों कितने पास है, रिकॉम्बिनेशन कब है? जब वो काफ़ी दूर दूर है तब वो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है। दैट्स इट, दैट वाज अबाउट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।